record on this. Means I have used mute all command. If you wish to say anything, just you have to unmute yourself on your own and you can enter the meeting. So just for the sake of decency. Uh, now, let me share my screen first. 7 days boot camp. I'll show you the feedback which I have got. Quiz, then quiz. This was the response. Go to response. 42 people have filled. Out of 64, 42 people have already filled. So column header, this was the score. And for every questions, for 25 out of 42 were correct, 31 out of 42 were correct, for 23 out of 42, 24, and this was the basic feedback of the training. The same thing, today also I have asked like, and one personal feedback, no, nothing good, very informative, interactive session. Slides good going, no thanks. Can do it. You are teachers. No problem. If you have any suggestion, give that suggestion in feedback form. Today, I have asked one question in the questionnaire, which I'm sharing regularly. Today, what means 3 bonus lectures I'm planning. So out of those 3, I wanted to guide you on how to construct Google form and how to collect data from the audience or any of the client. It is very beneficial if you haven't used Google form. I think these days collecting data and doing data analysis on that data is very much important. First, you know how we are going to collect data. Like for this one seat is there, auto-generated seat. If you click on this, your entire response will come on this particular set. This is the beauty of Google form. So one course I'm going to add as a bonus on Sunday is of how to build Google form and get a response and do a data analysis. First one. Second one, SPSS for research scholars. Those who are doing research or those who want to do some research work, how SPSS can be used. I can add some new lectures on that as well. Means that would be my second bonus. And third one is introduction of Power BI. I'm not going to teach you entire Power BI, but I'm going to introduce the platform, how Power BI can be launched, how basic tools and functioning can be used. So I'm planning to add any one of these 3 platforms. Only thing means just I have asked a question, just give a feedback that out of which you think is more important for you, so that I can add that particular thing as a bonus lecture on Sunday. Sunday we can exceed to 10 to 15 minutes extra and we can introduce all these things, because these are the basic things through which you can learn. And knowing these things are very much important. Just let me show you one interesting thing. If you go to download, this is your feedback only, and I'm working on that feedback only. So till the people number increases, let us do some magic. So enable editing, it is already done. Now, if you go into insert, go to pivot chart, click on OK. It is your data only. I'm telling you again and again. Just let me minimize it. Yes. Now, this is your data. This is your name. If you want data to be given by your name, so if you click on name, it will automatically come in rows. And if you want to take the response of one particular question values,
the people who have given this answer is going to be counted here. And if you click on this, if you want to count, if you want to make it sum, if you want to know average, each one individual's performance can be gauged. But I'm not concerned about name. I'm concerned about this question response. How many people have selected which one? So column header was the main question. And in that, if I want to insert, I go to chart selection, I select this one, click OK, and it will give me the performance. Is it visible to everyone? I'm not doing anything extra. I'm just working on the data which you have given to me through this Google form, the Google form which I have circulated with you. Column header numbers to identify and how many people have given this feedback. You can click on this and go to data labels and you'll see 25, 9 and 8. Is it visible to everyone or am I audible to everyone? First, the most important thing. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. yeah. Is it visible to everyone? Ji, sir. The screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. So this is the beauty of pivot table, which I'm going to discuss today. And the second thing, not discuss today, it is part of advanced Excel tools and techniques. So tomorrow and Sunday, we'll keep on discussing things in broader way, but how we can use this data, which you can collect it through Google form. Okay. Now, if you go into the C2, look at this. Means if I want to know the satisfaction level of candidates, so first delete इन दोनों को आप बाहर कर लो. बाहर करने के बाद हाउ सेटिस्फाइड विद द सेशन, मैं इस पे क्लिक करूंगा और सेम डेटा को मैं ड्रैग करके वैल्यूज पे लेके जाऊंगा एंड इट विल गिव मी द फीडबैक. यहाँ पे ये जो आ रहा है ये सम आ रहा है, इनको मैं काउंट में कन्वर्ट कर दूंगा एंड दिस इज द रेस्पॉन्स. मीन्स one fellow were not satisfied, two if I want to represent it through bar chart, this is the feedback. 1, 2, 3, 4, and if you want to add data labels means how many of you have selected. 25 were at high rating, 8 were at 4, 5, 3, 5 were at 3, and 1 was dissatisfied, and another one was highly dissatisfied. So this is the basic data which we can utilize, and whatever data I have collected through your Google form that I am showing. तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करके उनको यूटिलाइज करके यू कैन इक्विप योरसेल्फ, कैसे काम कर सकते हो, कैसे उनके ऊपर मींस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट. ये सारी चीजें बनाई जा सकती है. आपने रिस्पॉन्स दिया, ये फॉर्म रिस्पॉन्सेस हैं. फॉर्म रिस्पॉन्सेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इसको पाइवोट में कन्वर्ट करता हूँ और उससे चीजों को क्रिएट करता हूँ, अल्टीमेटली ये आपके डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है. अब इसमें एक छोटा सा एक ग्लिम्स दे रहा हूं. ये पाइवोट टेबल पे ही, इफ यू गो इनटू द पाइवोट टेबल, जस्ट ड्रैग दिस, पाइवोट एनालाइज डिजाइन. पाइवोट एनालाइज में वन स्लाइसर इज देयर. स्लाइसर पे जाओ. स्लाइसर पे जाने के बाद कैसे डायनेमिक चार्ट बनाया जाता है. दिस create name and give this and this much number of slicers will come. अब इन slicers में आप देखना कि इनमें इंडिविजुअल में रिस्पॉन्सेस चेक करना चाहता हूं. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस कैसे चेक होंगे, मैं सिर्फ एक सीट पे आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में इनको डायनेमिक बनाया जाएगा. लाइक अभिलाषा. So for Abhilasha, if I click on Abhilasha, how satisfied for this particular question, Abhilasha has marked 3. For this particular, how satisfied arrow, see mark 3. How satisfied 3. Any suggestion? Yes. What is the insert rows? This was the question response. How satisfied? So if I want to know individual
individual responses. Anjali Singh, Anjali Kumar, are you able to see these changes? अब मुझे उस पर्टिकुलर टेबल पे जाना नहीं है, मैं एक इंडिविजुअल बंदे का सारे रिस्पॉन्सेज डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? Is it visible to everyone? Yes, sir. So this is the beauty. This is the beauty of this data visualization techniques. ठीक है, every individual. तो ये सारी चीजें हम जब पाइवोट टेबल और उसके एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स पे जाएंगे, why I'm sharing it with you, because data visualization is very much important, and you can create n number of dynamic dashboards, and through those dashboards ultimately you are going to create a report, and that will in turn will help your company to take quick decisions. So that is the beauty. तो इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा आज. For today I have kept an agenda, like today I'm going to start with basic data visualization techniques, pie chart, bar chart. इनको कई तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं जो चार्ट में इंक्लूडेड होते हैं, और उन चार्ट्स के बेसिस पे व्हाट एक्स्ट्रा यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है, दीज आर एब्सोल्युटली बेसिक थिंग्स, नो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, लेकिन आप उनको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हो, उनके साथ प्ले कैसे कर सकते हो, और उनको कैसे अच्छे से रिपोर्ट के रूप में पेश कर सकते हो, दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. और थोड़ा सा टाइम परमिट करेगा तो उसको एक डायनेमिक बनाने की कोशिश करूंगा कि वो चार्ट्स डायनेमिक कैसे बन जाए. तो अगर मैं छोटा सैंपल डैशबोर्ड का क्रिएट करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे डायनेमिक बनाया जा सकता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ basic chart and pie chart and bar chart, and the most important link which you are going to get is going to come in insert. So first go to insert, and before going to insert the data on which we are working, first you have to select it. लेकिन ये वाला पर्टिकुलर डाटा सबको याद है ना, हम लोगों ने शुरुआत ही इसी पे काम करना शुरू किया था. That's why I have kept this particular data as an example. Bill, rent, car, credit cards, food, phone, all these things were there. तो इनको यूज करने के लिए our name Bhardwaj is entering with 2 handsets. Okay, Lucky Verma. So ये इस वाले डेटा सेट पे हम लोगों ने पहले से काम किया हुआ है, इसीलिए इस पे चूंकि काम किया हुआ है तो यहाँ पे अगर हम किसी चीज को इम्प्लीकेट करेंगे देन यू कैन इजिली बी एबल टू कनेक्ट इट. किसी भी चार्ट और बार चार्ट को या पाई चार्ट को जब हम इम्प्लीकेट करते हैं, उसका बेसिक फायदा क्या होता है, वंस यू सी दिस डेटा, थ्रू दैट डेटा यू वोंट बी एबल टू रियलाइज which one is greater, where more investment is taking place, where more expenses is there. You can do a comparative analysis. कभी भी डेटा विजुअलाइजेशन का फायदा क्या होता है, किसी के पास पूरा टेबल पूरा चार्ट देखने का टाइम नहीं होता. So people usually tend to spend so much of time to see those data. If you have a specific data visualization technique or data visualization platforms, ultimately you would be able to create a report through which anybody can visualize and take decisions. That is the beauty of this data visualization techniques. आज के डेट में पावर बीआई, एसपीएसएस और कितने ऐसे आर पे जाते हो, सैस पे जाते हो, पाइथन पे जाते हो, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज किए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ दोस प्लेटफॉर्म्स आर यूजिंग दिस डेटा विजुअलाइजेशन, एंड डेटा विजुअलाइजेशन plays a very important role in decision making process, because it ease out your decision making process. That's why I'm elaborating it in bit detail. तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे the data set average I'm not interested, that's why I kept it apart, because ये अभी एरर वाला जब समझाऊंगा तब वहां पे काम आएगा. मेरे पास 3 मंथ्स का डेटा है. 3 मंथ्स का किसका डेटा है, रेंट बिल, कार बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, फूड एंड फोन, which I usually invest. मैं एज एन इंडिविजुअल इन चीजों पे खर्च करता हूँ, एंड डेटा इज फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च
और ऐसे करके आप पूरे साल का भी रख सकते हो। पूरे साल के आप बजट को क्रिएट करके उनका डेटा विजुअलाइजेशन कर। डेटा विजुअलाइजेशन का खासियत क्या है? if you want to see, let me annotate the area, this one, recommended charts। आज जितना भी काम होने वाला है इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम होने वाला है। पाइवोट चार्ट को अलग से डील किया जाएगा, पाइवोट जब डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी दिया है हालांकि, लेकिन ये मेजर पोर्शन रहने वाला है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और डेटा वैलिडेशन एक डेटा का पार्ट है वहां पे, और प्रिंटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप यूज करते हो। और कई बार डेटा में, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में फिल्टर एंड सॉर्टिंग बताना है। और जब फाइल ऑप्शन में जाते हैं तो प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं। प्रिंट ऑप्शन में कौन कौन सी चीजें हैं उनको मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन में डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जो एक्सेल पे अवेलेबल हैं, दैट आई एम गोइंग टू इलैबोरेट इन डिटेल। सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पे फोकस करते रहिए। अब डेटा विजुअलाइजेशन शुरुआत करने से पहले एक्सेल की ब्यूटी ये है कि इट गिव्स यू recommended charts। recommended charts means if you have the capacity you can select from these different types of charts। ठीक है, इनमें कई तरह के इंसर्ट हायरार्की चार्ट, इंसर्ट कॉलम बार चार्ट, देन लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, देन स्टैटिस्टिक चार्ट, देन ट्रेंड और कॉम्बो चार्ट। ये सब पॉसिबल हैं। अगर आप इनमें से किसी को पिक करना चाहते हो देन यू कैन, बट इफ यू आर कंफ्यूज दैट आई एम नॉट एबल टू यूज एनी ऑफ दिस, सो गो टू recommended चार्ट। System will give you the recommended portions। Why recommended portions? They have created certain formats, and out of those format whichever is applicable or implicable, you can think that this is going to ease out my problem, you can use all these things। एक तो तरीका ये हुआ, जो अगर किसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सा चार्ट यूज करना है, सो recommended चार्ट इज गोइंग टू बी यूज। वहां से आप चूज करोगे और उस प्लेटफॉर्म पे यूज करोगे। तो ये उनके लिए जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन सा चार्ट यूज करूं। रिकमेंडेड के बाद पहला बेसिक चार्ट आता है, वंस यू सेलेक्ट द डेटा, पहला बेसिक चार्ट आता है, दैट इज कॉलम बार चार्ट। कॉलम बार चार्ट में भी ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, डेटा लेबल को मल्टीपल लेवल में डिसाइड कर देना स्टैक फॉर्म में, देन डेटा लेवल का ग्रेडियंट बना देना, देन 3D वाले पे आओगे, मींस योर कॉलम्स विल बिकम 3 डायमेंशनल, देन 3 डायमेंशनल में 3D स्टैक्ड कॉलम बन जाएंगे, देन 3D 100% स्टैक्ड कॉलम बन जाएंगे, और आपके डेटा वैल्यूज 3D कॉलम्स में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे भी रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं। तो कभी हम ब्रोशर बनाते हैं या फिर कभी कभी फ्लायर्स बनाते हैं, वहां पे डेटा एनालिटिक्स टूल और डेटा एनालिटिक्स को दिखाने के लिए इस तरह के ग्राफ चार्ट्स 3D वाले यूज होते हैं। लेकिन कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज में होता है वो हम क्लस्टर्ड कॉलम को यूज करते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी होती है और इजिली एक्सप्रेसिबल होता है। इस वजह से प्लेन फॉर्मेट पे लिख अंडरस्टैंड करते हैं। आप अगर बोलोगे तो इसमें से किसी पे भी यूज करके किसी भी कॉलम को बना के इम्प्लीकेट करके दिखाया जा सकता है। देयर इजंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, but I'm starting with absolutely basic structure so that each one of you are going to understand। So what was the technique? हमने क्या किया? We have selected the entire data for which we need a chart। After that we went to pie chart, bar chart, and in bar chart I have selected a particular format, and that format has come in front of me। तो यहां तक में सबको विजिबल है ना? स्टेप समझ में आया या फिर से रिपीट करूं? Yes, sir. देखो, फर्स्ट Sorry. स्टेप इज टू सेलेक्ट योर डेटा, go to insert, then go to this bar chart, and we have selected 2D column, select it, and automatically you will get this chart। So is it clear to everyone? Or if you are not able to open your mic, you can annotate, or you can drop a message। yes बोलते रहोगे, हाथ रेज कर दोगे, that is going to serve the purpose। Getting me? Now remove this mark first, सारे मार्क को खत्म कर दें, एंड देन विल मूव। हाँ, ये अब विजिबल हो गया होगा चार्ट। अब इस चार्ट पे देखिए,
इस चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है योर टाइटल. सो इफ यू आर एबल टू मेक इट लाइक इट इज मंथली बजट, मैंने इसको नाम दे दिया, लेकिन क्या इस पे डेटा लेबल्स विजिबल हैं? डेटा लेबल विजिबल मींस ये इस पे अगर आप इफ यू होवर अराउंड योर माउस तब तो ठीक है, ये बता रहा है कार का है, ये बता रहा है, ये आपको खुद नीचे में एक एक टेक्स्ट बॉक्स, जैसे मैं सर्च करता हूं, मैं अपने माउस के कर्सर को उस पर्टिकुलर बार पे लेके जाता हूं, इट गिव्स मी क्रेडिट कार्ड पॉइंट जॉइंस, देन इट गिव्स मी फूड, फूड के 16 जनवरी वैल्यू 300, देन इट गिव्स phone joined 16 January value 75. So in whichever section you will take, it will give you the data, but this is not suggestive. The kind of task we are going to do is ultimately not beneficial. किसी के पास रिपोर्ट भेजोगे उसके पास टाइम नहीं होगा, they can hover around their means mouse and they can get the feedback of that particular bar. So in this, one important tool is there. Watch very careful. ये दिख रहा है राइट साइड पे प्लस साइन? Yes, no? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So if you click on this plus, lots of options usually pop up. Access type, chart tiles, data labels, data tables, error bars. Error bars को अलग से बताऊंगा, इसलिए I'm going to skip for the time being. Grid lines and legends is already there. Then trend lines. Trend lines में भी click करोगे, it will give you different linear, exponential, linear forecast, 2 periods, more options में जाओगे तो और भी options आपको देगा और उसका trend line बना देगा. But for the time being, we are going to just इसको click करके सबको हटा दो, ठीक है? सबको हटा दो, legends भी हटा दो. ये ब्लैंक हो गया. अब देखो डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक में जब आप किसी चीज को बनाते हो, बनाने के बाद रिप्रेजेंट करना चाहते हो डैशबोर्ड वगैरह में, तो डैशबोर्ड में इसी तरह डाटा क्रिएट किया जाता है और डैशबोर्ड पे डाटा जो क्रिएट किया जाता है उस डैशबोर्ड पे बहुत सारी क्लैरिटी होती है, उस पे बहुत क्लटर्ड डाटा नहीं होता. तो जनरली सबसे अच्छा काम क्या होता है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाटा लेबल है, डाटा टेबल नहीं, डाटा लेबल. मतलब कौन सा फिगर क्या है, और अगर इस पे ज्यादा से ज्यादा आप ऐड करना चाहते हो तो एक लीजेंड बता दो. सबसे साफ सुथरा टेबल ये बोला जाता है. गेटिंग मी? इज इट विजिबल टू एवरीवन? अगर मैं इस पे एक्सेस ऐड करूं, एक्सेस टाइटल्स ऐड करूं, चार्ट टाइटल्स ऐड करूं, जितनी भी चीजें मैं ऐड करता चलूंगा, चार्ट टाइटल्स भी इंपॉर्टेंट है. चार्ट टाइटल में मैंने ऑलरेडी लिख दिया मंथली बजट, but more, if you implicate more things will start becoming cluttered. चीजें जैसे जैसे ऐड होती चली जाएंगी वहां पे चीजें छोटी होती जाएंगी, काम की चीजें. और ट्रेंड लाइन भी अगर ऐड कर दिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का, फॉर एग्जांपल रेंट कॉमन है, कार में थोड़ा बढ़ोतरी है, क्रेडिट कार्ड बिल में या फूड में या फोन में, जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा ट्रेंड है, उसको क्लिक कर दोगे, यू विल गेट अ ट्रेंड फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन. लीनियर फूड के लिए एक फूड का येलो को मैच करके कर दिया. एरर बार्स को इरेज कर दोगे तो यू विल नॉट गेट एरर बार्स. एरर बार को अलग से समझाने के लिए मैंने बताया वो. बट नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर टेबल यू वोंट बी एबल टू गेज एनीथिंग. आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा टाइटल है, कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कौन से वेरिएबल्स हैं. तो कोशिश में माय सजेशन वुड बी टू यूज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. डेटा टेबल को देने का कोई जरूरत नहीं, देन आप ट्रेंड लाइन को नहीं देने का जरूरत है, देन चार्ट टाइटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक्सिस टाइटल्स दे सकते हो आप. एक्सिस टाइटल्स मींस these things, these are months and these are bills. Is it clear to everyone? Bills. अब ये दोनों के अलावा और ज्यादा चीजें अगर आप इसमें इंक्लूड करते हो तो धीरे धीरे ये डेटा सेट क्लटर्ड होता जाएगा और चीजें निकल के नहीं. ये तो बेसिक फॉर्मेटिंग हुआ. बेसिक फॉर्मेटिंग के बाद इफ यू गो टू चार्ट डिजाइन, चार्ट डिजाइन में दे हैव क्रिएटेड सर्टेन
benchmark or certain formats on their own. Means Excel is going to give you different formats. You can implicate these formats and you can use these formats as per your requirement. आपको जो खूबसूरत लगता है आप उसमें ग्रिड लाइन के साथ, विदाउट ग्रिड लाइन के साथ, येलो, ब्लैक, जो भी आप यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज इट एंड यू कैन इम्प्लीकेट इट. मैंने बेसिक वाला रखा हुआ है which I have used. Now see, means most of you must be doing some presentation, you must be participating in certain events where you were expected to create certain pie chart, bar chart, and those who are going to sit for your summer internship report, please remind me, how many of you are going to go for your summer internship? Few names, like people who are in second semester, or if you are a BBA student, or if you are a PG student, you are required to do certain projects. So if you are going to appear for any particular project, this is the most important lecture for you, and how you are going to implicate things and how you are going to make your presentation beautiful, that's I'm going to discuss today. मैं उसी चीज को हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके. अभी तक में मुझे नहीं लगता कोई टेक्निकलिटी है, सो विल मूव फॉरवर्ड. My suggestion would be, if you want to make it simpler, just use basic things. And if you want to, if you are interested in creating different kinds of formats, you can select amongst the available options which is there. आपको जो अच्छा लगता है, इनमें से कोई भी बुरा नहीं है, इनमें से किसी को भी आप इम्प्लीकेट करके रख सकते हो. इट इज अप टू यू. और बाद में अगर आपको खुद से नहीं बना पा रहे हो, देन यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट इट एज वेल. आपके पास जनरली टाइम नहीं होता, दैट्स व्हाई एक्सेल हैज गिवन दिस मच ऑफ ऑप्शंस, एंड दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हाइल क्रिएटिंग पाई चार्ट और बार चार्ट्स. नाउ दिस वन, चार्ट स्टाइल्स. एक तो हो गया ऊपर वाला, वो राइट साइड पे आपके साथ वो उसी चीज को इम्प्लीकेट करके दिया हुआ है. आप इनमें से चूज कर सकते हो और डायरेक्टली जो जिस पे क्लिक करोगे दैट विल बी इम्प्लीकेटेड. यस सर, कह रहे थे कि ये सर फीचर 2010 में वो अवेलेबल नहीं है सर, तो अच्छा, आप पे 18 है 17 है क्या? 19 है. हाँ 19 सर है. मैं ऐसा चेक कर रहा हूँ सर, तो ये नहीं आ रहा है. हाँ तो ये 19 का फीचर है. अच्छा क्या बता दिया. तो मैं इस पे नहीं तो मीन्स और लोग को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये फीचर्स तो मेरे वाले में दिखे, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बेसिक सब में दिखेंगी. एक जो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये डबल क्लिक करोगे ऊपर में चार्ट डिजाइन तो सबको दिखेगा, और ये वाले ऑप्शन सबको दिखेंगे जहां से आप चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं. स्विच रो दिखेगा, सेलेक्ट डेटा दिखेगा, डेटा चेंज चाहे मूव चार्ट, ये सब सारे ऑप्शन दिखेंगे. ये फॉर्मेट वाला एक बार कंफर्म करो, फॉर्मेट वाले पे शायद अब नए वाले ऑप्शंस में नहीं है. फॉर्मेट में जाने के बाद दिस फॉर्मेट ऑप्शंस, ये फॉर्मेट कैसे काम आता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर डेटा कैटेगरी, इस पे जाऊंगा, सेव फिल के बाद मैं जाऊंगा, इनमें से किसी भी एक कलर को चूज करूंगा और वो मेरा कलर चेंज हो जाएगा. दूसरा, इनमें से मैं सबको एक कॉमन कलर देना चाहता हूं, मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस करूंगा, select this one, then this one. It is not selecting. एक बार में एक ही डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहा है, जैसे एक पे क्लिक करने के बाद एक डेटा टाइप, और उसको आप फिल कलर पे जाके देन यू कैन चेंज इट्स कलर. ठीक है. या फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन था, चार्ट डिजाइन पे जाइए, उनमें से किसी को एक इम्प्लीकेट कर दीजिए. इनमें से आप डेटा वैल्यू चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, एक्सिस चेंज कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, if you have selected axis titles भी change कर सकते हो, chart titles, data labels, data tables, error bars, everything is possible. Now I'll not move very far on this, because I think there are certain constraints with earlier versions. In MS Office 365 and 2019, they have given very beautiful options. So my suggestion would be, if your RAM strength is above 4, means if your laptop or system RAM is more than 4 GB, first try to make it 8 GB RAM and upload this particular, take this 2019. It is very important.
Earlier, even if you see on the older version, this draw facility was not there. अब आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, फॉर्मूला फंक्शंस, मैथ फंक्शंस, सब कुछ यहीं से इंप्लीकेट कर सकते हो. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग ड्रॉ, नो ड्रॉ. हाँ, सर नहीं तो उसके फिर लिए फिर परचेज करने के लिए बोल रहा है कि परचेज तो परचेज मतलब काम अच्छा ऐसा कोई करना टेब्ड चाहते तो वर्जन नहीं है? नहीं नहीं. we are on a call and we are in on recording mode. If you face any problem, you can discuss it with me later on. I'll give you the ways. But my suggestion would be 2019 and 365 are better platforms. It will give you many options to implicate. तो हम उसको यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा. इसलिए मैं बेसिक जा रहा हूँ, बहुत एडवांस नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चीजें और सिस्टम्स में शायद न रिफ्लेक्ट करे. सिर्फ यहां तक में अभी तक की दिक्कत नहीं हो रहा होगा. मैंने अभी 2-3 चीजें बताई, जैसे एक्सिस हटा दिया, एक्सिस ऐड कर दिया, एक्सिस टाइल्स, एक्सिस चार्ट टाइटल हटा दिया, चार्ट सर टाइटल ये लिंक. हाँ, ये फीचर भी शो नहीं कर रहा है ना सर? ये तो बेसिक है, 10 सब में में मिलता है, सब में. अच्छा, यहाँ वाला सर टेबल मेरे में छोड़ तो दो, नहीं आ रहा डेटा है। टेबल देखो. ये अगर ये भी नहीं आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे जाओगे, सर अगर ऊपर में जाओगे, सेलेक्ट डेटा, हाँ सर ये जरूर होगा. ये मतलब होगा ही होगा, मतलब कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती. ये 2007 से है. ये और लोग भी हैं, विजिबल है सबको? जितने लोग मीटिंग, हाँ. अब इस पे क्या फायदा है कि इस पे आप चाहो तो डेटा को ऊपर नीचे, जैसे देख रहे हो, मैं किसी रेंट को ऊपर ले जाना चाहता हूँ या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, तो यू कैन इम्प्लीकेट इट. दूसरा, अगर आप ये 5 कैटेगरीज है, रेंट है, कार है, क्रेडिट कार्ड है, फूड है, आप उसमें ऐड करना चाहते हो, कौन सा डेटा ऐड करना चाहते हो? मान लो रेंट के अलावा मैं लाइक मैं क्या पॉकेट मनी इम्प्लीकेट करना चाहता हूँ. क्लिक ओके. एक पॉकेट मनी का एक कैटेगरी ऐड हो जाएगा 1 2 3 4, और उसके बाद ओके करूंगा तो एक पॉकेट मनी का कैटेगरी भी 1 2 3 4 वाला लास्ट में पॉकेट मनी ऐड होके आ जाएगा. और पॉकेट मनी का वैल्यू यू कैन गो एंड इम्प्लीकेट इट. तो ये ऑप्शंस ना, मतलब ये जो बेसिक वाला है, सेलेक्ट डेटा वाला, इट इज गोइंग टू रिमेन देयर. ठीक है. अब इसमें जैसे मैं गया नीचे वाले पे, पॉकेट मनी को खत्म कर दो, सो दैट क्लटर वुड नॉट बी देयर. अब एक बेसिक चीज बताने जा रहा हूँ. ठीक है. इसमें कई बार क्या होता है कि आप जब डेटा को काम करते हो और आप चाहते हो कि एक डैशबोर्ड बनता चला जाए, तो उनको मूव करना पड़ता है. मैंने मंथली बजट पे काम किया था, मैं चूंकि अब हटा दे रहा हूं तो इसलिए बार बार वहां से रिमूव हो जा रहा है. मंथली बजट वाले में इफ यू क्लिक ऑन दिस डेटा टेबल एरर बार्स में ट्रेंड लाइन वगैरह सब यूज कर लिए. इसमें से एरर बार अभी थोड़ी देर बता दूंगा. इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर. ये एरर बार्स उसी से रिलेटेड है, तो उसको भी इम्प्लीकेट करके बता दूंगा. माय यहाँ पे जब कभी समर इंटर्नशिप वाले प्रोजेक्ट वाले बच्चे जाते हैं, तो उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि सर डेटा टेबल को उसी टेबल में डालना चाहिए या नहीं. तो आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो डेटा टेबल प्लीज डोंट यूज इट. और अगर एकदम मजबूरी है, कई बार कुछ प्रोफेसर्स या कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारा डेटा क्या है, तुम डेटा भी वहीं दिखाओ और उसके चार्ट्स वगैरह भी वहीं दिखाओ, तो आपको इनको इंक्लूड करना चाहिए. अदरवाइज प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग. अब इनको डेटा टेबल, जस्ट क्लिक ऑन दिस डेटा टेबल एंड इट विल बी रिमूव. और जितने बेसिक से लेके जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होता है. अब इसके बाद इस पे जब क्लिक करोगे सेलेक्ट डेटा में यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सेलेक्टेड डेटा आता है. सेलेक्टेड डेटा नहीं है, देन यू कैन सेलेक्ट दिस थिंग, दिस वन. ठीक है. मैं जनवरी का एक डेटा ले रहा हूं और इसको थोड़ा लेट मी मेक इट स्मॉल, चीजों को आप आसानी से देख सको. और इसके मैं काफी सारी चीजों को अब मैं रिमूव करूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मीन सारी चीजें आप देख चुके हैं कौन कौन सा क्या है. जैसे मैं चार्ट टाइटल रहने दे रहा हूँ, एक्सिस टाइटल को गायब कर दे रहा हूँ, एक्सिस गायब कर दे रहा हूँ, ताकि आपको चार्ट बड़ा दिखे. और
जो मैं अभी इम्प्लीकेट करूंगा उसके बारे में आप देख सको। क्यों क्यों दिखाना जरूरी है। यहाँ पे अब आपको बेसिक चार्ट दिख रहा होगा। बेसिक चार्ट के बाद अब यहाँ पे जाते हो सेलेक्ट डेटा। इन सेलेक्ट डेटा यू आर नॉट गेटिंग एनी डेटा वैल्यू। गो टू दिस, प्रेस कंट्रोल, और उस जनवरी का डेटा है आपके पास, फिर फरवरी का डेटा है, एंड एंटर। सब गायब हो गया। आपके पास जनवरी का आ गया डेटा, आपके पास मार्च का डेटा आ गया, फरवरी का डेटा चला गया। अब इसमें इसमें अगर आप चाहते हो कि बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में टेक्स्ट फील्ड में है, टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट ऑप्शन ग्रेडियंट फिल नो फिल करके अगर आप देना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। उसमें वर्टिकल टेक्स्ट डायरेक्शन देना चाहते हो, कस्टम एंगल देना चाहते हो, जो भी चीजें आप इंप्लीकेट करना चाहते हो, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन। देन इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शंस में मिडिल, टॉप अलाइन, हॉरिजॉन्टल में आपका अगर डेटा लेवल बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर आप हॉरिजॉन्टली लिखते हो उससे प्रॉब्लम है, तो आप उसको रोटेट कर सकते हो। कस्टम एंगल करना चाहते हो तो यहाँ पे पहले कस्टम सेलेक्ट कर दो और दूसरे में डिग्री दे दो। तो आपको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें से सारी चीजें यूज करने के लिए ये ऑप्शन देता है। ये लेटेस्ट वर्जन में सारे में मिल जाएंगे। 2007 के बाद वाले ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे, बेसिक फंक्शंस, कलर वगैरह का, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। चार्ट ऑप्शंस में जब जाएंगे तो यहाँ पे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, पैटर्न फिल, ऑटोमेटिक, और पैटर्न फिल में भी आप इसमें से किसी पर्टिकुलर एक पिछले बैकग्राउंड के पैटर्न को आप देखो, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अभी क्या है कि जो हम लोगों ने देखा है, जो एक्सेल ने बनाया हुआ है, एक्सेल ने इन्हीं में से कुछ फॉर्मेट्स को यूज करके बनाया हुआ है। आप चाहो तो अपना क्रिएट कर सकते हो। जब नो फिल पे गए, nothing would be there. Solid fill पे गए, it will give you the option, but I want to change the background, this one, everything is possible. Gradient fill मतलब नंबर का वो कलर का ग्रेडियंट बना देगा। दो एक्सट्रीम हाईलाइटेड रहेंगे और मिडिल में वो कम कलर का रहेगा, और उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, यू कैन ड्रैग दीज थिंग्स। आप ग्रीन को बढ़ाना चाहते हो, आप येलो को बढ़ाना चाहते हो, इट इज पॉसिबल फ्रॉम हियर। अब आपकी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इफ यू हैव टाइम यू कैन मेक इट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। मीन्स आप उस पे से इनमें से किसी भी चीज को किसी भी तरीके से इम्प्लीकेट करके और खूबसूरत बना सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप पिक्चर एज ए टेक्सचर को भी आपको सेलेक्ट करना है। इट विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स, लेकिन मैं प्लेन में रहने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। टेक्सचर वगैरह यूज करोगे, इट यूजुअली चीजों को और खराब दिखने लगता है। तो आपके ऊपर है, मतलब आपको अच्छा लगता है तो देन यू कैन इम्प्लीकेट इट, अदरवाइज टेक्सचर वगैरह पे यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें शैडो, देन रिफ्लेक्शन, देन ग्लो, देन सॉफ्ट एजेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आपके ऊपर है हाउ यू आर गोइंग टू यूज इन योर सेल्स। तो कुछ ऑटोमेट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लोग वो बनाते हैं, मतलब जब यहाँ से डैशबोर्ड पे लेके जाते हैं, तो डैशबोर्ड पे इसको यहीं पे पूरा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, एंड देन विल टेक इट टू मेक ए डैशबोर्ड। तो उस समय डैशबोर्ड बनाने के समय ये चीजें वहां पे मूव करके जाती हैं, तो एक शेप लेके जाती है, ताकि आप वो ब्यूटीफुल बना सको और ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सको। तो उसमें विड्थ, कंपाउंड टाइप, डैश टाइप, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब आप कलर, टेक्सचर वगैरह जो भी यूज करना चाहते हो और उसको इम्प्लीकेट करना चाहते हो, तो वो वहां पे चीजें उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीकेट हो जाएंगी और आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये टाइम का चीज है, मतलब आपके पास अगर किसी चीज को ब्यूटीफुल बनाना है तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, बट इफ यू डोंट हैव टाइम, just stick on these basic platforms. Excel has given n number of opportunity, n number of sales that you can, n number of templates basically you can utilize and make it beautiful. ये सारी चीजें आपकी तरफ से खूबसूरत बनाने में यूज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद सॉर्टिंग फिल्टरिंग वाले में आओगे तो इसमें से जिसको रखना चाहते हो उसको रखो, जिसको नहीं रखना चाहते हो आप हटा भी सकते हो। जिसको रखोगे वो विजिबल होगा, बाकी सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे चेक बॉक्स हटाओगे वो इम्प्लीकेशन हट जाएगा। उसके बाद अगर मंथ में आप जिन जिन चीजों को यूज करोगे वो भी चीजें यहाँ से सॉर्टिंग फिल्टरिंग के द्वारा अप्लाई हो जाएंगी और सिर्फ वही चीजें दिखेंगी। तो ये तीनों ऑप्शन जो मेरे दिख रहे हैं, प्लस वाले में एक्सिस वगैरह को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ट्रेंड लाइन बनाना,
ये सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल है। देन ये फॉर्मेटिंग का बेसिक जो एक्सेल देता है उस चीज को इम्प्लीकेट करने का है। ये आप इनमें से किसको रखना चाहते हो, किस वैल्यू के साथ काम करना चाहते हो, ये पॉसिबल यहाँ से। इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया कि इस पे डबल क्लिक करोगे, स्विच रोज एंड कॉलम पे जाओगे, डेटा सेलेक्ट करके अभी बता ही दिया कि यहाँ पे आप कुछ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इनमें से कॉलम लेबल चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आप इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है चेंज चार्ट टाइप। आप एक बार डेटा को सिलेक्ट करके, ये दो आपके पास मॉडल्स हैं, इसके अलावा आप इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, पाई में कन्वर्ट करना चाहते हो, बार में कन्वर्ट करना चाहते हो, एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्स वाई स्कैटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैप स्टॉक, मैप तो बाहर से मतलब आप इंपोर्ट करते हो, स्टॉक में देखा होगा कैंडल स्टिक होता है, डे लो, डे हाई और मिड वैल्यू सब उस पे आता है, सरफेस पे, देन रडार पे, ट्री मैप पे, सनबर्स्ट पे, हिस्टोग्राम पे, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, यू कैन यूज दीज थिंग्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कॉम्बो में कई तरह की चीजों को एक साथ इम्प्लीकेट करके बनाता है, जिसमें ट्रेंड लाइन, एरिया, बार, पाई, सबको कंबाइन, पाई तो नहीं मतलब ट्रेंड लाइन को और हिस्टोग्राम को और बार चार्ट को, तीनों को कंबाइन करके ये देता है आपको। वहां पे ये ऑप्शन भी देता है कि इनमें से किसको किसको आप इम्प्लीकेट करना चाहते हो। तो आपके ऊपर है, इफ यू हैव टाइम यू कैन इम्प्लीकेट ऑल दिस थिंग्स इन योर चार्ट एंड अल्टीमेटली इट विल ब्यूटिफाई योर चार्ट एंड यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर डेटा क्वाइट ब्यूटीफुली। देन कम टू आवर बेसिक स्ट्रक्चर विच वी हैव फॉर्म। ठीक है, इसी पे काम कर रहे थे। इसी पे काम करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करो आप, तो आपको चीजें नजर आएंगी। इसमें मुझे एक आ रहा था तो एरर बार आ रहा था, एरर बार को एक छोटा सा करके समझा तो एरर बार क्या होता है। जैसे यहाँ पे कर रहे थे एरर बार, एरर बार पे जाओगे, एक छोटा छोटा लाइन दिख रहा होगा, इज इट विजिबल टू एवरीवन? एक एक लेट मी एनोटेट इट। यस सर। ड्रॉ, यहाँ पे एक छोटा छोटा बार दिख रहा होगा, ये देखो, छोटा, हर लाइन पे एक छोटा, किसी में बड़ा है, किसी में छोटा है, किसी में बिल्कुल स्टैग्नेंट है, मतलब नो मूवमेंट इज देयर, किसी में। ये एरर बार बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर जो उस दिन पूछ रहे थे ना, यहां से आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिकली दिखाता है कि मीन वैल्यू से कितना मतलब डेविएट कर रहा है, इफ इट इज ए केस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जो एस्टिमेट होता है, उस एस्टिमेट से सैंपल और पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस पड़ रहा है, उसको हम स्टैंडर्ड एरर से मेजर करते हैं। लेकिन अगर वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एरर का एक सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। ये तब आपको ये एरर बार भी समझ में आने लगा कि ये आता ही क्यों, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का कम। तो आप इसको पहले कंट्रोल जेड करते हैं, सारी चीजों को इरेज कर देते हैं, और उसके बाद क्लिक करके इसको साइड में ले जाते हैं और इनके सारे ड्राइंग्स को खत्म कर देते हैं, देन विल वर्क। तो थोड़ा सा डेटा को और साइड में ले जाए। अब एवरेज के बाद आपका है, आता है स्टैंडर्ड एसटीडी डीईवी, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आता है एसटीडी एरर। तब वो चार्ट समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सबको आइडिया होगा ना। एसटीडी, एक पॉपुलेशन, एक सैंपल, क्लिक किया, डेटा रेंज सेलेक्ट किया, डेटा ऑफ रेंट, सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च, एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0? ऑल मैथमेटिशियंस हु आर देयर इन द ग्रुप, ये मैथ्स का कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 0 आ गया। व्हाई इज इट सो? और कहीं पे ये ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, कहीं पे कम दिखा रहा है। व्हाट इज द रीजन? कैन आई गो अहेड? मैं बताऊं? फटाफट चलो, मींस Yes, लॉट्स ऑफ sir. थिंग्स Yes, sir. आर Yes, sir. देयर।
हाँ देखो बच्चे, उस दिन जो हम लोग ने बात किया था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर का आपको चार्ट में मतलब दिख रहा है, वो जितने स्टैटिस्टियंस हैं और जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको स्टैंडर्ड एरर दिखाना पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका जो आपका एस्टिमेट है उससे पॉपुलेशन और सैंपल में कितना वेरिएशन आ रहा है उसको आप स्टैंडर्ड एरर से दिखाते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिखाता है? मीन से आपका डाटा कितना डेविएट हो रहा है। अब यहाँ पे आपका मीन पूरे 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 तीनों डेटा में मीन वेरी कर रहा है क्या? मीन तो सबका डेटा सेम है, तीनों डेटा 1200 है, तो मीन डेविएट कर रहा है? मीन तो एक ही डेटा आएगा। अगर तीनों डेटा 1200 है तो उसका एवरेज भी तो 1200 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत छोटा सा चीज है, समझ गए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर तीनों डेटा मेरा 1200 है, if I am going to calculate the standard deviation, if no deviation is there, then my standard deviation will come out as 0. Is it clear to everyone? दूसरे वाले डेटा में देखो 250, 250 एंड 250, यस सर, सेम। तीनों में सेम, तो तीनों में यहाँ से Same, मीन yes, कोई sir. डेविएट कर रहा है? अगर मीन डेविएट कर रहा है इसको 500 कर दो, देखो यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा। आ गया? तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का। सर वॉइस ब्रेक। कोई कॉल तो नहीं आ रहा? हाँ, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, somebody was dropping a call, that's why. Is it clear right now? Is it clear right now? यस सर। Yes, yes. मैंने बोला कि जहां पे डेटा वेरी नहीं कर रहा है वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन 0, जहां पे डेटा, अब इनको फिर से 250 कर दो, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। तो मीन से कितना डेविएट कर रहा है आपका डेटा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू ब्रैकेट शुरू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू नहीं देते हैं, स्क्वायर रूट SQQRT। ये किसका फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, देन ब्रैकेट क्लोज। कितने ब्रैकेट्स हो गए? 2 ब्रैकेट्स थे, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। मेरा स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे क्या आ गया? 0, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाकी सारे में यहाँ पे भी स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड एरर जो है वो पॉपुलेशन और सैंपल का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखोगे ये अगर आप नीचे इसके चार्ट को आप इसके नीचे लेके आओ, देन यू विल बी एबल टू सी। इज इट विजिबल टू एवरीवन? इसको और बड़ा कर दूं क्या? इसके लीजेंड्स वगैरह सब खत्म कर दो, देन यू विल बी एबल टू, इसके एक्सेस खत्म कर दो, चार्ट टाइटल खत्म कर दो, डेटा लेबल खत्म कर दो, ग्रिड लाइंस खत्म कर दो, लीजेंड्स खत्म कर दो। मुझे सिर्फ एरर दिखाना है, एरर बार। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको स्टैंडर्ड एरर वाला दिख रहा होगा। लीजेंड एक बार आपको कलर पता चल जाएगा। देखो रेंट ऊपर से मैच करो, रेंट का स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे क्या आ रहा है? व्हाट यू आर एबल टू सी? is there any error which is reflecting here? बड़ा एरर है, छोटा एरर है? स्मॉल है। हाँ, दूसरा दिस वन कार, सर वो भी स्मॉल ही ग्रे है। कलर, यहाँ पे 00 ऐसे भी दिख रहा है ना, बाय फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको। सेम सेम। ठीक है, उसके बाद तीसरे से मेरे पास वेरिएशन sir. आता है 60, 50 एंड 9। 60 यहाँ पे दिख रहा है ना, 16, देन 50 एंड देन 9 यस सर। दिख रहा है। 16 ये वाला, 50 yes, ये sir. वाला और 9 ये वाला। अब आपको स्टैंडर्ड एरर समझ में आ रहा है? दो दिस इज मैथमेटिकल Yes, sir. कंसेप्ट, चूंकि यहाँ पे एक्सेल में आ गया था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग को बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, एक्सिस टाइटल, चार्ट, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल्स, ग्रिड लाइंस, ट्रेंड लाइंस, सब आप इंप्लीकेट करके अपने चार्ट को खूबसूरत बना सकते हो। लेकिन माय सजेशन इज कीप लेस नंबर्स, एज लेस एज पॉसिबल, सो दैट यू कैन ब्यूटिफाई योर चार्ट्स। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं देती।
जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो हम लोग ऐसे डैशबोर्ड को लेके जाते हैं, फ्रेश, बिल्कुल उसपे बहुत ज्यादा लीजेंस वगैरह नहीं रहते, सिर्फ अगर बहुत ज्यादा है तो डेटा लेबल डाल दो, कि आपको डेटा लेबल डाल दो, ताकि अब डेटा लेबल पे जो ऑप्शन आ रहा है, इनसाइड, इनसाइड बेस, डेटा कॉल आउट, मोर ऑप्शंस, ये सारी चीजें भी आप इम्प्लीकेट कर सकते हो। सेंटर में डालना चाहते हो, इनसाइड एंड भी जाना चाहते हो, इनसाइड बेस पे डालना चाहते हो, डेटा कॉल आउट पे डालना चाहते हो, मतलब वो खुद ही मतलब डेटा को All लीजेंड out के रूप में पे। दिखा दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जैसे आप ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हो। और इसके अलावा तो डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और सारे ऑप्शंस तो है, इनमें से भी वो जो यूज करना चाहो वो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक और छोटा सा चीज रह गया है जिसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। कैन आई डिलीट दीज टू थिंग्स? अब समझ में आ गया होगा सबको, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। ये एमबीए वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, जितने एमबीए के बच्चे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू डू दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल, सो इट इज फॉर देयर बेनिफिट। चलो, इस पे एक चीज जो रह रहा है दैट आई एम गोइंग टू इम्प्लीकेट, यहाँ पे जाओ। जब ये नए वाले में ऑप्शंस में मुझे नहीं लगता कि 2010 से पहले वाले में दिखेगा, ऐड चार्ट एलिमेंट्स, एक्सिस, एक्सिस में मुझे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुझे प्राइमरी वर्टिकल चाहिए, ये पॉसिबल है। देन दूसरा, चलो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल, आप चार्ट टाइल्स, टाइटल, आप कोई चार्ट टाइटल अबव देना चाहते हो, सेंटर्ड देना चाहते हो, ओवरले देना चाहते हो। देन डेटा लेबल पे, डेटा लेबल सेंटर पे चाहते हो, इनसाइड चाहते हो, इनसाइड बेस पे चाहते हो, आउटसाइड बेस पे, डेटा कॉल आउट पे चाहते हो। देन डेटा टेबल विथ लीजेंड कीज, नो लीजेंड कीज देना चाहते हो। एरर बार्स पहले ही बता दिया, अभी जो बताया था, स्टैंडर्ड एरर, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इम्प्लीकेटेड। आपको चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। आपको चाहिए स्टैंडर्ड एरर, आपको कुछ नहीं चाहिए तो नन। ये सारी चीजें भी इम्प्लीकेट करके अपने चार्ट पे लेके आ सकते हो। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस में आप ग्रिड लाइंस, वर्टिकल ग्रिड लाइंस, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, मींस लोअर मार्जिन ग्रिड लाइंस, vertical margin, primary lines, all things are possible. Then comes legend, right top, legend जो देख रहे हो, अब legend, legend मतलब क्या, जो रेड पे रेंट कार, क्रेडिट कार्ड्स दिख रहे हैं, तो लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, कौन सा लीजेंड आपको अच्छा लगता है वो ला सकते हो। देन ट्रेंड लाइंस, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फोरकास्ट, मूविंग एवरेज, एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम दिस। तो अब आपके पास कितने हो गए? चेंज कलर्स में अगर चाहते हो तो आप इसमें से कोई सा भी सेट उठा लो, इसी कलर सेट में से आपको वो पूरे चार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक्सेल देमसेल्फ हैज गिवन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और वेरी गुड टेम्पलेट्स व्हिच यू कैन यूटिलाइज। आप जब भी काम करते हो, आपको जैसे लगता है कि आप उससे खूबसूरती के साथ ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल थ्रू दिस। एक लास्ट कमांड जो मैं बताने जा रहा हूं, मूव चार्ट। मूव चार्ट में सीट 1, देन सीट 4, सीट 4 तक डेटा है तो सीट 4 को करके ओके कर दूंगा, मेरा चार्ट सीट 4 पे आ जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये सीट 4 पे तो कर दिया, लेकिन क्या डेटा इससे लिंक्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यहाँ का चार्ट वहां पे चला गया है, लेकिन यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू मेक 1100, देन 250, देन इतना ही करके देख लो, 4 पे जाओ, चेंज हो गया। Yes इज sir. इट विजिबल टू एवरीवन? Yes sir. तो जब हम Yes, sir. डैशबोर्ड बनाते हैं तो एक डेटा का टेबल रहने देते हैं और एक डैशबोर्ड बनाते हैं जहां पे उसके ऊपर में काम करने वाले को डेटा को रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको इसको डायनेमिक कैसे बनाया जाता है? आप डायनेमिक कैसे बनाते हो? डायनेमिक मीन्स अगर एक पर्टिकुलर मुझे रेंट का डेटा चाहिए, एक मुझे सिर्फ कार का एक्सपेंडिचर का वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इसी पर्टिकुलर टेबल पे एक डायनेमिक स्लाइसर बनाने का अभी मैं दिखाता हूं। पहले इस पे क्लिक करो, चेंज द कलर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो खूबसूरत लगे, यूज दिस वन। अब पूरा ब्लैंक दिखेगा और आपको आपका आपका डैशबोर्ड थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। अब यहाँ पे आप जनरली क्या करते हो, दिस वन, सेलेक्ट द डेटा, स्लाइसर कैसे ऐड करना होता है वो बता रहा हूँ। गो टू पाइवोट, गो टू न्यू वर्कशीट,
new worksheet, then close this one, and you want to click bills and take January, February, March, and you'll get the data. Is it visible to everyone? Is it visible? Yes, sir. हाँ, ये विजिबल है। अब देखो यहाँ पे या तो आप इस पे डायरेक्ट इंसर्ट करके चार्ट बना लो, मतलब रिकमेंडेड चार्ट बना लो, या सिंपली कॉलम चार्ट। ओके, तो आपको उसी तरह का सिमिलर कुछ चार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्लाइसर के साथ लेते हो तो आप चलो बिल्स पे जनवरी, फरवरी, मार्च का स्लाइसर ले लेते हो, यू विल गेट these things 1 2 3 and this one is 4. कंट्रोल सी, मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहा हूं, दिस वन, एंड अब इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके एक साथ मैं अलग कर दूं और इनको थोड़ा साइज कम करूंगा। मेरे ख्याल से सबको विजिबल होगा। ठीक है, मैं कार देखना Yes, sir. चाहता हूँ। मैं कार का जनवरी का 250 मार्च 16 का, मैं क्रेडिट कार्ड का देखना चाहता हूँ 125 150 220। अब इसका जो स्लाइसर बनाया हुआ है, ये मैंने वहां से खुद से बना के लाया था, अब मैं पाइवोट वाला लेके आता हूँ। ठीक है, गो टू डेटा शीट, go to data sheet, go to insert, then go to pivot, create this one। पहले बिल्स को रोज में लेके आए, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे आ गया, then create this particular, go to insert, then go to pie, create this one, control C, control V, sorry, sheet 5, sheet 6, this one, इस पे क्लिक करो, वहां से वो कॉपी कर रहा है जो पहले कॉपी था, दिस वन। अब ध्यान से देखना, इसका एक इलेबोरेटेड डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसमें भी हम लोग और थोड़ा खूबसूरत होगा, टाइम लगा के उसको बनाएंगे। लेकिन अब ये कार, क्रेडिट कार्ड्स, फूड, फोन पे यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस पे एक टूल होता है, देन रिपोर्ट कनेक्शंस, क्लिक ऑन दिस पाइवोट टेबल। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन करो, रिपोर्ट कनेक्शंस, इस पे क्लिक करो। ओके, इस पे रिपोर्ट कनेक्शन करो, क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। ओके, रिपोर्ट कनेक्शंस, चेक बॉक्स, सबका रिपोर्ट कनेक्शन हो गया, इसका एक चेक बॉक्स रह गया था, एक बार सबका चेक कर लो, नहीं तो मूव कोई नहीं करेगा, ये सबके कनेक्शंस बनाने जरूरी होते हैं। अब देखो, मैं सबको क्लियर कर दे रहा हूं, क्लियर ईच वन ऑफ इट, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब थोड़ा बड़ा करने से आपको ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, विजिबल है ना? इज इट विजिबल टू एवरीवन? क्योंकि अब चमत्कार होने वाला है। देखो, क्लिक ऑन कार, क्या हो गया? कार का कितना, हर मंथ में कितना पैसा खर्च होता है, इज इट कमिंग? और आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. डायनेमिक डैशबोर्ड इसी को बोलते हैं। मतलब मुझे अब क्रेडिट कार्ड का चाहिए, क्लिक ऑन क्रेडिट कार्ड एंड विल सी द डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप डेटा लेवल्स भी ऐड कर दो, डेटा लेवल ऐड कर दो, देन विल कम टू नो। और डेटा लेवल के बीच में अब आपको सामने सामने दिखेगा किसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है।
कार पे मेरा सिर्फ 250 या क्रेडिट कार्ड पे चेंज हुआ, फूड पे चेंज हो रहा है, फोन पे चेंज हो रहा है, देन रेंट पे इट इज चेंजिंग। मैंने जो डेटा बाद में 1200 को 250 किया था, इट इज टेकिंग। सो आर यू एबल टू सी द चेंज? मेरे पास बिल्स में 5 सेक्शंस थे और पांचों सेक्शंस के मैंने डायनेमिक डैशबोर्ड बना दिया। एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं आपको डेटा प्रेजेंटेशन का, बाद में तो बड़ा डैशबोर्ड वी आर गोइंग टू शो इट टू। सो इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर एक्सेल चार्ट। उसी एक्सेल चार्ट को हम लोग डायनेमिक बना दे रहे हैं, पाइवोट को इम्प्लीकेट करके और स्लाइसर को इम्प्लीकेट करके। आर यू एबल टू सी दिस? आर यू नॉट एक्साइटेड कि आपने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया जिसपे क्लिक करने के बाद मुझे कुछ काम नहीं करना, एंड इट इज शोइंग द रिजल्ट्स? आर यू पीपल देयर? यस सर। Yes. कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बस ऐसे बस मोबाइल फेंक दिया कहीं पे, एंजॉयिंग लाइफ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये कैसे बना दिखा? अदरवाइज आई Yes, sir. टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल आल्सो एज वेल, बट एकदम सबसे सस्ता वाला डैशबोर्ड बना के दिखाया ताकि आप लोग तुरंत विजिबिलिटी देख सको कैसे डायनेमिक बनाया जाता है। अभी तक मैंने चार्ट बनाया, चार्ट को पाइवोट पे लेके गया, पाइवोट के थ्रू चार्ट बना के उसमें स्लाइसर ऐड करके उसको डायनेमिक बना दिया। तो डायनेमिक बनाने से क्या होता है, कोई भी यही तो चाहता है कि मैं किसी एक टैब पे क्लिक करूं और उसका मुझे रिजल्ट मिल जाए। फूड पे डाल दिया, फोन पे डाल दिया, रेंट पे डाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे चार्ट पे वैल्यू चेंज हो रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, अब इस पे से राइट क्लिक करके भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो, और उनको आपका मतलब अगर आप चार्ट पे ही यूज करना चाहो तो चार्ट पे यूज कर लो। अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, पीछे मैंने डाटा चूंकि लिंक कर दिया है। जिस दिन मेन डैशबोर्ड बनाऊंगा तो उन मेन डैशबोर्ड पे आप लोग को एक बड़े डैशबोर्ड पे बड़े डाटा के साथ, मतलब एचआर का डाटा सेट होगा और उसके ऊपर फिर मैं बताऊंगा आपको। तो यहां तक में किसी को डाउट? डिलीट एवरीथिंग। आपने पाई चार्ट बनाना सीखा, पाई चार्ट बना के एक पर्टिकुलर सीट से दूसरे सीट में मूव करना चाहा, उसको फॉर्मेट करना चाहा, फॉर्मेट करके एक शेप दिया। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज रह रहा है, और चूंकि अब आप समझ चुके होगे तो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज द सीट, नाउ सिलेक्ट दिस वन। दूसरा जो सबसे कॉमनली यूज्ड है वो मैं बताने जा रहा हूँ, बार चार्ट, स्टैक चार्ट यू कैन इजिली क्रिएट ऑन योर ओन। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू insert. In insert, go to this pi one, pi, and you'll see the result. दिख रहा है सबको? रेंट, क्रेडिट कार्ड, Yes, सबके sir. पेमेंट्स। अब इसने 100 में डाटा को चेंज कर दिया और 100 में चेंज करके जनवरी का रिजल्ट दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है, जब भी पाई चार्ट होगा वो कई डेटा लेबल्स को, और ये आज का क्विज भी है, क्विज में दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। जैसे बार चार्ट था, ये सारे डेटा लेबल्स को ले रहा था, देख रहे थे सारे डेटा लेबल्स को, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन इसने क्या पिक किया है, ओनली वन डेटा लेबल, दैट इज जनवरी। फरवरी निकालना होगा तो फिर फरवरी ऐड करोगे, मार्च निकालना होगा तो फिर मार्च ऐड करोगे। और उसको ऐड करने का तरीका आप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट डेटा, सेट डेटा हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। अब उस पे आप इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद क्लिक ऑन दिस, टेक दिस मच ऑफ डेटा, और अगर आपको ये नहीं चाहिए देन क्लिक दिस वन एंड क्लिक ऑन दिस वन, एंटर। अब आपके पास फरवरी का डेटा है। डिफरेंस पता चल रहा है? इस पे सिर्फ आपको ब्लैंक लग रहा होगा तो इसको और खूबसूरत बनाने के लिए यू कैन ऐड डेटा लेबल, लीजेंड्स वगैरह हैं। तो फरवरी 16 का है, और फरवरी 16 के कितने परसेंटेज हैं। जब भी हम किसी भी डेटा के परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज, ये पूरे डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, पहले 100 में, और इनके परसेंटेजेस को यहाँ पे मेंशन करता है। आपको इसमें से लगता है यू वांट टू यूज परसेंटेज साइन, यू वांट टू यूज
absolute numbers, you want to use different data labels and different data formats, you can use it. But what I'm trying to say, जब आप पाई चार्ट बनाने जाओगे और पूरा डेटा को सिलेक्ट करोगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आएगा किसी एक ही मंथ का। जैसे मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद पाई पे जा रहा हूँ, और ये कॉमन एरर है दैट यू आर गोइंग टू, अब देखो रेंट पे सिर्फ पूछ लिया इसने, तो रेंट इज नॉट माय रिक्वायरमेंट, पीछे वाले को डिलीट कर दो, रेंट इज नॉट माय रिक्वायरमेंट। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या दिया, रेंट, कार, क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट, बट इसने क्या लिया, सिर्फ रेंट। तो यहाँ पे सिर्फ जाके स्विच रो कॉलम कर देते हैं, एंड देन इट विल टेक द एंटायर थिंग, बट ऑलवेज गोइंग टू टेक वन ओनली कैटेगरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पाई चार्ट बनाओगे, आपको बोलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च का भी डेटा उसमें इंक्लूड कर ले, नहीं, they consider only one particular data category, and in that one particular data category they segregate it in terms of percentage. अब इस पे add chart element, chart titles, above the chart titles देना चाहते हो दे दो, centered overlay चाहना चाहते हो वो दे दो, data labels में center, inside end, outside end, best fit, data call out, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं आपके उस डेटा इम्प्रोवाइजेशन में और रिप्रेजेंटेशन। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू विल कॉमनली यूज इन योर प्रोजेक्ट्स, समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स में आप इनको बहुत कॉमनली यूज करने जा रहे हो। इसीलिए इनको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे अलग अलग लेवल्स पे जाके चेक किया जाए, कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन इट टू यू। आप इसमें कॉलम, रो स्विच करने का, उनको डेटा सेलेक्ट करके डेटा को चेंज करने का, देन उसके बाद चेंज चार्ट टाइप, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, यू कैन चेंज इट, देन मूव, अगर ये डेटा बना लिया है देन यू कैन मूव चार्ट, आप चाहते हो इस सीट से किसी और सीट पे चला जाए, यहाँ पे सीट, अगर इस पे सिर्फ एक सीट है, if 2 or 3 seats would be there, it will come in, drop down box, and through that drop down you can select it and it will move into the next seat. So these are the basic learnings I think you are going to implicate while making any projects or any of the reports which you are going to use in your office, as well as if you are from academics, definitely you are going to use all these tools and techniques while creating a report. So am I still there with you all? दो इंपॉर्टेंट चीजें, पाई चार्ट, बार चार्ट को अच्छे से बताया, और भी कई तरह की चीजें हैं। आप इंसर्ट पे जाते हो, प्ले विथ इट, मींस प्ले n number of times because time is limited, we have already spent more than 1 hour. ये सिर्फ एक sensitization का है, and I have shown 2 basic benchmark presentation skills through which you can visualize your data. Different other techniques are also there, but you can keep on using this particular platform so that you can make yourself comfortable using pie chart and bar chart, as well as different other platforms are also there. So for the time being, I'm going to close it down and I'm going to move into the next section, that is data validation. Up to this, is there any problem with anybody? We have discussed pie chart and bar chart in detail. कैसे लीजेंड्स चेंज करते हैं, एक्सेस चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल. Can we move ahead? Yes, sir. Yeah. So I'm going to close this particular thing. इसके बाद एक बहुत important concept है, that is data validation. Have you gone through this data validation? किसी को थोड़ा बहुत idea so that I can start or have some discussion on that, and then I'll discuss things. I think 25, 24 people are there, but response which I'm getting are coming from only 2 or 3 people. So are you still there? Because I'm going to discuss very important thing. आप जब डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करने को वैलिडेट, सही डेटा आपके पास कैसे आए, that I'm going to discuss. For any particular event, suppose आप फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना चाहते हो. Suppose you are at the information desk or at admission committee
and you want to give admission to your students. So for those students database, you want to create a list. So how that data list is going to be validated and valid informations are going to be fetched only, that you are going to create it through. And if people from resonance, I don't know means whether they are there or not, because ultimately this is going to help them in creating their own pure list, and that list is not going to give any kind of error. So are you people there? एक बार 2-4 लोग बोली लगाओ, then we'll start. Yes, और sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. very good, very good, very good, very good. Accurate data also known as validation of data. Okay, very good, very good. Atul ji has answered. Everyone. Yes, you are absolutely right. Means data valid data है कि नहीं, और जो data collect कर रहे हैं उसको validate कैसे करते हैं, this data validation tool is going to tell. So let me annotate the area where I'm going to work. I'm going to work on this particular area. अभी जैसे insert में मैंने एक command पूरा किया, and don't worry, means everything is going to be covered, but I have started picking some important things which is going to help you in a practical way. All these things are very practical and very useful tools and techniques, and ultimately it is going to help you while doing some work. Generally data collection काम Excel पे basic काम तो data collection का ही होता है Excel पे, और सर्वे फॉर्म बनाना, फीडबैक फॉर्म बनाना, ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है. एक तो सबसे सस्ता तरीका जो मैं बता दूं, जो सबसे सस्ता तरीका होता है, कल जो बच्चे लास्ट में थे, मैंने फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है उसका मैंने बता दिया. ओके, अब देखो ये जो यहाँ पे लिस्ट थी, ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई या नहीं आ गई? नए पॉपअप विंडो में सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी, हैज इट कम और नॉट? Yes, sir. तो सीरियल नंबर मेरा फर्स्ट डाटा, देन यूज टैब 1 फर्स्ट. फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट कैंडिडेट वुड बी ई स्किलिंग, जेंडर इज मेल, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1. Then Aadhaar number remains of 12 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then 1 2 3 12. Date of birth 12 5 1985. Age suppose 30. City Varanasi. Enter. Have you got the information? यहाँ पे चीजें ऐड हो गई. पहले इसको क्लियर करो. Yes, sir. ये जो मैंने भी डाला यहाँ पे, या अपने आप लिस्ट में क्रिएट हो गया? Yes, sir. Is it visible to everyone? देखो बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूँ. You'll definitely not get this information anywhere. एक तो तरीका ये हुआ डेटा एंट्री का, कि आधार मतलब कोई भी डेटा एंट्री कर रहे हो, वो फॉर्म क्रिएट करना रहता है. फॉर्म क्रिएट करके इस तरह का बेस बनाया जाता है. तो फॉर्म आता कहाँ से? हैव यू सीन एनी प्लेटफॉर्म ऑन लाइक फॉर्म इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स? ये फॉर्म क्रिएट करने वाला, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सारी चीजें आ जा रही हैं. उसके बाद न्यू करोगे, इट विल रिफ्रेश इटसेल्फ. दूसरा डेटा फिल करोगे, एंटर करोगे, दूसरा रो अपने आप आ जाएगा. तीसरा डेटा फिल करोगे, तीसरे में आ जाएगा. ऐसे एक तो सबसे सस्ता तरीका है डेटा एंट्री का, and for the same purpose you are going to get 500 to 600 rupees per hour. आप फाइबर पे कोई काम करो डेटा एंट्री का, आप कई तरह के फाइबर जैसे कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं, अपवर्क वगैरह जैसे, वो सब फ्रीलांसिंग वर्क आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो फ्रीलांसिंग वर्क क्या कराते हैं? इसी तरह का डेटाबेस रहेगा. आपको एक पर्टिकुलर सीट में वो डेटा दिखेगा, दूसरे सीट में आपको लेके आना होगा, या फिर फिजिकल डेटा रहेगा, उसको आपको एक एक्सेल सीट बनाना होगा. तो उस समय आप इस पर्टिकुलर टूल का यूज कर सकते हो. एक तो ये तरीका हुआ. नाउ लेट मी शो
if you all are still awake, let me show how these options can be added. Go to option, go to customize ribbon, go to customize ribbon, then in command not in ribbon, in command not in ribbon you are going to get form. यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा, ये फॉर्म, इसको यहाँ पे ऐड करोगे, इट विल डायरेक्टली बी एडेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. यहाँ पे जैसे ऐड करोगे, ये राइट हैंड साइड पे मैंने चूंकि ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो वो मैंने ऐड किया हुआ था क्विक एक्सेस टूल बार पे. आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो. देखो जैसे बैकग्राउंड रिमूवल, होम पे आप क्लिक करना चाहते हो तो होम पे क्लिक कर दिया. होम पे जाने के बाद एक नया टैब क्रिएट, न्यू ग्रुप क्रिएट कर दिया. न्यू ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब इसको ऐड कर दोगे तो वो होम टैब में ही ऐड हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए ट्राई करके देखता हूँ. होम न्यू ग्रुप में फॉर्म आ गया, क्लिक ओके. अब मैं होम पे जाऊंगा. होम पे कहीं पे फॉर्म दिख रहा है क्या? इट इज नॉट विजिबल. ये सर ऊपर है. कहाँ पे सर जो टिक है इंसर्ट के ऊपर. ये सर ये तो मैंने वहां ये क्विक एक्सेस टूल बार पे कल ऐड किया था. ये इसी होम टैब में एक बार बंद करके खोलूं शायद तो आ जाएगा. लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर सेट और दोबारा से अगर मैं ओपन करता हूं, दिस इज डेटा वैलिडेशन कार्तिकेय. Go to home tab, home to save a copy, data validation card. Okay, ठीक है. आप अपने वाले में देखना, आपके वाले में चूंकि मैंने ये टैब क्विक एक्सेस टूल बार पे मैंने ऑलरेडी फॉर्म ऐड किया हुआ है, दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन ड्यू टू व्हिच इट इज नॉट अलाउइंग मी. नहीं तो यहाँ पे जनरली ये फॉर्म क्रिएट होके आता है. मैंने क्विक एक्सेस टूल बार पे कल लास्ट में सेशन में जो 10-12 बच्चे थे उनके सामने इनको ऐड किया था, तो मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी ऐड हो चुका है. आप लोग के पास ये यहाँ पे ऐड होगा. ठीक है, तो ये बेसिक फायदा क्या है इसका. जस्ट अ मिनट, लेट मी annotation then clear all points. हाँ, अब इसका बेसिक बेनिफिट है कि एक डेटा एंट्री का वर्क बहुत आसानी से एंड विथ लेस टाइम यू कैन डू दिस. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अलावा भी डेटा जब एंट्री करते रहते हैं तो चांसेस आर देयर ऑपरेटर्स मे मेक मिस्टेक करने का क्या रीजन रहता है कि बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू मेक एन एंट्री. तो अगर आपको एंट्री नहीं आती उनको करनी, तो आप एंट्री उनसे करवाओगे तो आपको एक एक्सेल शीट बना के उनको देना चाहिए सो दैट दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग जेन्युइन एंट्रीज. तो मैं जैसे सीरियल नंबर डालता हूँ, मेरे स्टूडेंट इनटेक होने चाहिए थे 100, तो मैं ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दूं कि अगर वो गलती से 101 टाइप कर दे, 102 टाइप कर दे, तो 100 से ऊपर के कैंडिडेट्स को वो ब्रीच ही ना कर पाए, वो सिर्फ 100 तक के लोगों को एडमिशन ले. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंडीशन एंड for this I'm going to go into the data. I'll go to data validation and in this I'm going to use whole number. whole number क्यों? whole number को इस यहाँ पे देखोगे डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यूज आते हैं, होल नंबर आते हैं, होल नंबर के बाद डेसिमल आते हैं, लिस्ट आती है, डेट आती है, सबको एक एक करके मैं यूज करूंगा किसी ना किसी केस में. तो होल नंबर में मैं चाहता हूं मेरे कैंडिडेट्स कितने होने चाहिए थे, 100. तो 100 में मैं अगर मैं 100 स्टूडेंट्स चाहता हूं तो मैं बिटवीन फंक्शन यूज करूंगा. बिटवीन कितने से कितने के बीच में 1 to 100 स्टूडेंट्स चाहता हूं तो मैं मिनिमम 1 रखूंगा, मैक्सिमम 100 रखूंगा. और अगर मुझे मैसेज देना है कि 100 स्टूडेंट्स आर अलाउड एंड 100 कैन ओनली इनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, जैसे मेरे अगले वर्कशॉप में आई एम गोइंग टू अलाउ ओनली 100 पीपल, तो मैं 100 का यहाँ पे कैप्शन लगा दूंगा. और अगर इसको अलर्ट देना चाहते हो, अगर कोई इनवैलिड डेटा है वहां पे, तो इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं. स्टॉप मतलब दोबारा से एंट्री करो, वार्निंग दे देगा, या फिर इंफॉर्मेशन देके उसको ऐड कर लेगा. ये तीनों ऑप्शंस होते हैं. वार्निंग देके छोड़ देगा लेकिन ऐड कर लेगा. इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर लेगा. लेकिन स्टॉप में ये आपको वैल्यू ऐड करने नहीं देगा. देखो, और जब नहीं देगा तो मैं जो यहाँ पे मैसेज दूंगा वो मैसेज भी बताएगा 1 स्टूडेंट कैन बी अलाउड, only 1 student can be allowed
and up to 100 student can fill. अब ये जब मैंने कर दिया तो अब यहाँ पे 200 टाइप करके देखो, टेक दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ न्यू सीट, इसमें पहले से लगा हुआ फ्रेश काम करते हैं। सर ये जो है एडिटर वाला जो है वैलिडेशन सर, हाँ हाँ मैं सेल को सेलेक्ट करके तब करते हैं ना सर? हाँ 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 कर रहे, इसीलिए तो पहले से उसमें लगा हुआ था ना, इसलिए फ्रेश फ्रेश पेज पे ले गए ताकि आप फ्रेश देख सके। अब देखो सीरियल नंबर में जो मुझे वैल्यू चाहिए, सीरियल नंबर में मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, एनी वैल्यू के जगह पे अब मैं फ्रेश होल नंबर लेता हूँ, बिटवीन लेता हूँ 1 एंड कितने वैल्यूज में चाहता हूँ 100। इसके बाद मैं इनपुट मैसेज क्या देना चाहता हूँ, मैं वहां पे अगर आप अपना कर्सर ले जाओगे इस पर्टिकुलर कॉलम में तो वो देगा ओनली 100 पीपल आर अलाउड। उसी चीज को आप बड़े फॉर्म में लिख सकते हो, ओनली 100 पीपल आर अलाउड फॉर दिस वर्कशॉप। ओके, अब देखो ये अपने आप मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा? मैं कर्सर यहां से यहां ले जाऊं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां ले जाऊंगा तो मुझे इसमें मैसेज देगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा वैल्यू ऐड करना है। आर यू एबल टू सी दिस? अगर मैं दूसरे में क्लिक करता हूँ नो मैसेज इज देयर, बट इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस इट विल गिव मी मैसेज। अब मैं यहाँ पे 200 टाइप कर दूं, क्या आया? This value doesn't match the data validation restriction defined for this particular cell, retry। अब ये रिजेक्ट कर दिया इसने। फिर से मैं अगर 99 टाइप करूंगा इट विल टेक, बट 102 इट विल गिव एरर। दिख रहा है सबको? Is it visible to everyone? Yes, sir. चलो, तो इसका मतलब है कि सीरियल नंबर में जो भी डेटा एंट्री करेगा बंदा, इट विल वैलिडेट इट, मतलब 1 से लेके 100 तक का ही डेटा लेगा। अब इसको दूसरा तरीके से भी इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन भी लगा सकते हो। डेटा वैलिडेशन मैं एंट्री वगैरह का और ज्यादा भरूंगा नहीं, इस पे लगा सकते हो कस्टम लगा के यहाँ पे एक पहले एक फॉर्मूला क्रिएट कर लो, is number is equal to is number, double click this one, bracket closed, is equal to true। इसका मतलब समझ रहे हो? इस वाले से यहाँ पे अगर कोई नंबर आएगा तो उसको तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप कुछ और ऐड करना चाहोगे तो इसको कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, गो टू डेटा वैलिडेशन, गो टू होल नंबर, गो टू कस्टम में इसको फिल कर दिया, ओके किया। अब यहाँ पे जब जाओ और यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिखो, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब मैं यहाँ पे अब नंबर लिखूंगा इट विल टेक 1 2 3 4। देखो कोई भी नंबर ले रहा हूं वो ले रहा है, लेकिन जैसे मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं इट इज गिविंग मी एन एरर। क्लियर है? तो दो तरीके से नंबर को वैलिडेट करने का तरीका, सीरियल नंबर कहां से कहां तक लेना है दैट आई एम गोइंग टू यूज, और सीरियल नंबर के बाद मैं टेक्स्ट कैसे यूज करने जा रहा हूं। इज इट विजिबल टू एवरीवन? फिर से इसको डिलीट कीजिए। सर एक बार फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे क्या इस नंबर वाला? देखिए
ये इज नंबर, जिस सेल को आप नंबर बनाना चाहते हो उसको, तो मैं इसी वाले सेल को दे देता हूं, ठीक है, इसको क्लोज कर रहा हूं। क्लोज करने के बाद इज इक्वल टू, और वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। डबल क्लिक, नाउ सेलेक्ट इट, कहां पे लेके जाओगे, कंट्रोल एक्स करके इस पूरे सेल को सिलेक्ट करो, गो टू डेटा वैलिडेशन, गो टू कस्टम, कस्टम पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ, फिर से पेस्ट कर दो। और इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा तो मैंने 2 स्टेप छोड़ दिया, टाइम का कमी है। इनपुट मैसेज में ओनली 100 पीपल के जगह पे फीड ओनली नंबर, और ओनली 100 पीपल अलाउड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप की जगह पे आप क्या बोलोगे, दिस सेल इज गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली नंबर्स। और एरर क्या देगा, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। इसी को रिपीट करना चाहो तो यहां पे भी रिपीट कर सकते हो, प्लीज, हालांकि आप नीचे में इलैबोरेटेड लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल के देखो, आया, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। और यहाँ पे जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कैंसिल इट, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर कहीं भी लेके जा रहा हूँ, क्या है, फीड ओनली नंबर, दिस सेल इज गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली नंबर्स, कर रहा है। यस सर। अब देखो नेम पे चलो, नेम पे क्या चाहिए, नेम वाला नंबर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट के लिए हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग टू इम्प्लीकेट इज टेक्स्ट, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, ठीक है। डबल क्लिक, select this one, close this one, is equal to true, double, ठीक है। now select the entire thing, control X, go to data, select the range, go to data validation, then go to setting, go to custom, custom में enter formula, then only text is allowed, only text is expected to be filled। सब जगह वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेटा एंट्री एक्सेल पे करते हैं, एक्सेल को वैलिड डेटा कैसे निकालते हैं, these are the ways। इनवैलिड, एरर मैसेज क्या देगा, इनवैलिड डेटा फिल ओनली टेक्स्ट, ओके किया। अब देखो यहाँ पे मैसेज आने लगा, मैं जहां भी जा रहा हूं मैसेज आ रहा है, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर डाल दूं, फिल ओनली टेक्स्ट आ गया। इज इट विजिबल टू यू, थोड़ा यस नो, मेरा एनर्जी बना रहेगा, अदरवाइज आई लूज होप। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, मतलब because you'll not get all these things in single platform। अब है जेंडर। सो जेंडर के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जेंडर आप यहाँ पे मेल और फीमेल लिख लो, ताकि उसके अलावा कोई भी डेटा एंटर हो, सो इट इज नॉट गोइंग टू सिलेक्ट मेल फीमेल। और इसको मैं यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करूंगा, गो टू डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, देन सेटिंग्स, सेटिंग्स में लिस्ट पे सिलेक्ट करो, एंड देन लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट दीज 2 वैल्यूज, क्लिक ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो ये ड्रॉप डाउन बन के आ गया, मेल और फीमेल का आ रहा है। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी मेल और फीमेल का ड्रॉप डाउन आ गया। अब मेल और फीमेल का ड्रॉप डाउन आ गया, इसके अलावा अगर इसके डेटा वैलिडेशन वाले पे जाओगे तो मैंने एरर वगैरह तो अभी नहीं डाला,
लिस्ट दिया हुआ है, इनपुट मैसेज ओनली सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, select from the list, then alert invalid data, invalid data, invalid data. ओके अब देखो यहाँ पे अब कुछ भी मतलब 2 3 4 5 क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं डाल सकते आप यहाँ पे। अगर मैं कार्तिकेय डालना चाहूं तो भी नहीं ले सकते। यहाँ पे जब भी मुझे करना पड़ेगा तो वो कौन सा डेटा लेगा, या तो मेल या तो फीमेल। देख रहे हो, मैं मेल फीमेल टाइप कर रहा हूं तब तो ले रहा है, लेकिन मैं कार्तिकेय टाइप करता हूं। क्लियर है? आर यू Yes, एबल टू sir. सी दिस? Yes, sir. अब दो तीन तरीके पता चल गए डेटा वैलिडेशन। नाउ कम्स टू मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 और 12, no 13. 10। सो इस पे डालेंगे हम 20 only. टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ डाले या इसमें होल नंबर डालते हैं? होल नंबर डालते हैं और इसमें हम करते हैं इक्वल टू करने के बाद कर देते हैं इसको 10 और इसको कर देते हैं ओके। लेकिन इस पे एक दो चीज रह गया, इनपुट मैसेज एंटर 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इसी को कॉपी करके जल्दी से फटाक से किया जाए, टाइम बहुत तेज भाग रहा है, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock। और एरर मैसेज क्या करूंगा, इनवैलिड एंट्री, और वही मैसेज यहाँ पे पेस्ट कर दो और क्रिएट कर दो। अब देखो एंटर 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर, जहां पे भी जाओगे आपको पहले ही मैसेज मिलेगा, ताकि जो डेटा एंट्री कर रहा है उसको पहले से पता हो कि मुझे यहाँ क्या करना है। देखो हर में अब आपके पास मैसेज आ रहा है, वो पहला वाला मैसेज सिर्फ इसी को इंडिकेट करता है कि आपको क्या यहाँ पे एंटर करना है। अब मैं देखो इंटरेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 मतलब 10 डिजिट से बढ़ गया मेरे ख्याल से। एंटर करो, आया एरर? Yes. बोल रहा है एरर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 डिजिट टेक्स्ट ले लिया क्या, या 10 डिजिट से ज्यादा कम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 है ना? फिर यस सर। क्यों नहीं ले रहा है? जस्ट मिनट, क्लिक करो डेटा वैलिडेशन, स्टॉप इनवैलिड डेटा एंट्री, सेटिंग्स, होल नंबर इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू तो ठीक है, इक्वल टू वैल्यू कितना है 10, ये भी ठीक है। अप्लाई दिस चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स, सेम सेटिंग्स, ओके। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 चेक करना पड़ेगा, इसमें पहले से कोई डेटा लगा हुआ है। अब इसका वैलिड करके देखते हैं एक बार, चेंज करके डिजिट 12 करके 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ये ठीक है, 8 9 10 11 12। मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, टाइम खोटा हो रहा है, अभी चलते हैं। सर एक ठीक है, बार आधार पे करिएगा। नहीं बता रहे इसका हमको टेक्स्ट यूज करना चाहिए था। इसका मुझे होल नंबर ना करके टेक्स्ट है यहाँ पे, टेक्स्ट लेंथ करना चाहिए था। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। ये टेक्स्ट के रूप में ले रहा है, इस वजह से एरर दे रहा था। वहां पे मैं होल नंबर ले रहा था, होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वाले वैल्यू को इनवैलिडेट करता है। अब इसमें मैं एक और आपके लिए डाल दे रहा हूं 1। क्लियर हो गया? क्या लेना था हम लोग को? टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पे भी आधार में आधार कितने डिजिट का होता है? 12। क्या लेना चाहिए? एनी Text वैल्यू की length. जगह पे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ बिटवीन नहीं, टेक्स्ट लेंथ में बिटवीन नहीं, इक्वल टू 12। आगे मैं मैसेज नहीं लिख रहा हूं, सब आप लोग खुद से देख लेना। यहाँ पे 12 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ले लिया 12 डिजिट का। अब इसमें चाहो तो आप एक डिजिट और 14 ऐड करो एंड इट विल गिव यू द एरर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes. अब देखो डेट ऑफ बर्थ, इसको वैलिडेट करते हैं। फटाफट भागो, नहीं तो पीपल आर लिविंग। डेट में देखो, मैं चाहता हूं कि यंग पीपल कैन ज्वाइन माय वर्कशॉप, तो मेरे पास एक रेंज है 2022, तो मैं एंड डेट दे दूंगा। लेकिन 20-22 साल वाले हैं मान लो, मतलब माय टारगेट ग्रुप इज पीपल आर हु आर हैविंग 22 इयर्स ऑफ एज, तो मैं 2002 से स्टार्ट करता हूँ। 2000 से स्टार्ट करूंगा 2022 तो का अगर मैं एज दे दूंगा तो उसमें सिर्फ 22 साल वाले लोग उसमें अपीयर हो पाएंगे। तो स्टार्ट डेट मान लो मैं कर देता हूं, दिस इज 01/01/2000 एंटर। एंड डेट वुड बी 01/01/2022। 23 कर दीजिए सर। कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एरर मैसेज, हम लोगों ने शायद मैसेज टाइप नहीं किया ना, मैसेज नहीं टाइप किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि 01/02/2023 एंटर कर रहा हूं, ले रहा है। और अब दूसरा डेटा में जा रहा हूं 01/01/1999, नहीं ले रहा है। अब मैं इसमें डेटा जा रहा हूं 01/01 देन 19 तो छोड़ ही दो, 2001। क्लियर है? यस सर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेटा वैलिडेशन। अब एज में एज का क्या होना चाहिए? नंबर में होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए? सर नंबर में। नंबर में। तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे? Number. इज नंबर, डबल क्लिक, देन this one bracket closed is equal to true। अब just copy this particular thing, control X, go to data validation, go to custom, is true, input message I'm not going to put, मतलब खुद से कर सकते हैं। एरर मैसेज भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे किया जाता है। वी डोंट हैव टाइम। ओके। यस सर। अब यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट हम डालते हैं, नहीं लिया ना। अब मैं यहाँ पे 25 ईयर्स डाल रहा हूँ, 55 ईयर्स डाल रहा हूँ, कोई भी डिजिट ले रहा हूँ, ईयर डाल रहा हूँ तो कर रहा हूँ। अब इसमें कोई भी टेक्स्ट डाल दोगे, इट विल गिव यू एरर। एज को और किसी तरीके से वैलिडेट किया जा सकता था। हम लोग एज को एक लिमिट के थ्रू भी वैलिडेट कर सकते थे। लिमिट के थ्रू मतलब कस्टम होल नंबर, मिनिमम वैल्यू 1, 22 साल तक के लोग, और 20 भी छोड़ दो, मतलब 15 इयर्स के लोग एक्सेल सीखे, 15 साल से 22 साल तक के लोग। और इसके बाद 16 इयर्स, 17 इयर्स,
कैसे देते हो हम? अनूप जी, अब यहाँ पे 55 कर दूं तो वो नहीं लेगा। क्लियर है? सिटी में भी इसी तरह टेक्स्ट डालना चाहते हो, कुछ भी डालना चाहते हो, वो हो जाएगा। सिटी में जैसे आप लिस्ट के थ्रू डालना चाहते हो कि मान लो कि इन्हीं सिटीज से लोग आए, तो उन्हीं सिटी के स्पेसिफिकली आप मेंशन करके उनको इम्प्लीकेट कर सकते हो। जैसे दिल्ली के लोग आए, मुंबई के लोग आए, अहमदाबाद के लोग आए, देन चेन्नई मेट्रो से सिर्फ लोग मेरे कोर्स में ज्वाइन करें, और लास्ट में वाराणसी के लोग ज्वाइन करें। then I'm going to use this. Go to data validation, go to list, then source. This one is going to be my source. Click OK. I'm not going to give any error message or anything. मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, it will give me error. But if I'll type Delhi, it will accept it. If I'll type Mumbai, it will, स्पेलिंग देखो गलत हो गया, नहीं ले रहा। मुंबई ले लिया, देन चेन्नई ले लिया, देन वाराणसी ले लिया, लेकिन इसके अलावा मैं गाजियाबाद, इट विल नॉट टेक। तो डेटा वैलिडेशन क्लियर है फॉर एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, अब एक छोटा सा एक सर्वे वाला बना के दिखा देता हूँ लिस्ट से, दैट इज वेरी हेल्पफुल। यहां तक में सबको कोई दिक्कत तो नहीं? मैं दो चीजें, एक तो डेटा विजुअलाइजेशन, बार चार्ट, पाई चार्ट, and second one data validation, and after that one more interesting thing is there. Somebody voice is breaking. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Somebody is mute. Anup, do you want to say something? Your voice is not clear. Even I was not able to understand what you were saying. Yes sir. Sir. हाँ, Sir क्या है कि Sir. yes, please tell me. Your voice is भाई not coming. तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है। अरे please, Sir, don't give that. Drop me a message. Drop me a message. I'm not able to listen. Drop me a message. हाँ, जल्दी से बता दूं। देखो, जैसे मैं सर्वे क्वेश्चन करता हूं, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ जैसे यहाँ पे आप सीरियल नंबर दे दो, यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन दे दो, आप देख पा रहे होगे। देन क्वालिफिकेशन दे दो, एंड हाउ satisfied are you with this course दे दो। अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं और भी बना सकता था, बट आई एम नॉट डूइंग सो। थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ। नेम, क्वालिफिकेशन यू आर गोइंग टू फिल, और इवन इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट लाइक बेसिक, मतलब जहां से लोग एक्सेल सीखना शुरू करते हैं, 12th स्टैंडर्ड को मीन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देन सेकेंड ग्रेजुएशन, थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट। ओके, अब ये मेरी लिस्ट हो गई। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू go to this particular thing, then go to data validation, go to list, and it will ask me from where you want to create a drop down list. I'm going to select this one. Okay, and in every seat you will get this drop down. आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी, जो भी जिस बंदे का होगा वो यहाँ पे बना के
यू कैन सेलेक्ट इट, डॉक्टरेट, ये आपका लिस्ट बन गया। पूरे में जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर डालोगे, नेम पे मैंने हालांकि डाल दिया, ये इस पे क्वालिफिकेशन पे, देन यू कैन स्विच इट। ये इसको क्वालिफिकेशन कर दो और उस पे अब लग गया सेल, अब लेगा भी नहीं। चलो, ये नाम समझना कि यहाँ पे नाम दिया, क्वालिफिकेशन वाले में ये सेम चीज इंप्लीकेट होगा, तो क्वालिफिकेशन जैसा चूज करोगे देन। अब मैं बोलता हूँ कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू, मुझे सर्वे करना है और इसके कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सो इन दैट केस आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे हाईली dissatisfied, then neutral, satisfied, highly satisfied. अब देखिए, just click on this particular thing, then go to data validation, go to list, then give the range, this one, and click OK. Now you'll get, यहाँ पे आपको dissatisfied हो तो dissatisfied, neutral हो तो neutral, satisfied हो तो satisfied, highly satisfied हो तो highly satisfied, और यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर का अगर मान लो आपके पास 100 कैंडिडेट हैं तो 100 कैंडिडेट का एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना लो, उसको यहाँ पे इम्प्लीकेट कर दो, बंदा खुद से ड्रॉप डाउन से वो नाम सेलेक्ट कर लेगा। अब मेरे पास जितने नेम हैं, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ, जस्ट डिलीट एंड इंसर्ट। अब मेरे पास पहले से ही बंदों के नाम हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर, इस पे किसी का नाम आ जाए, दिस वन, मेरे पास पहले ही पार्टिसिपेंट के नाम है या फर्स्ट नेम है, दिस वन इज द फर्स्ट नेम। मैं अपने वाले सीट पे इन नेम्स के बेसिस पे आई एम गोइंग टू डू समथिंग। इनको उठाया और अभी उठाया नहीं, गो टू डेटा वैलिडेशन, क्रिएट अ लिस्ट, देन क्लिक हियर, select this range, okay, ये देखिए you'll get name। अगर आपको अपना नाम दिख रहा है, अपना नाम डाले, क्वालिफिकेशन का भी आपको लिस्ट दिखेगा। क्वालिफिकेशन पे जस्ट a minute, go to data validation, select list, then this one, okay। अब आपके पास यहाँ पे भी आ गया। अब ये होगा आपका ग्रेजुएशन, ये सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड कर लिया। अब इसी तरह से मैं जितने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा, इसको चाहो तो आप सेलेक्ट करके या इस वाले सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर दोगे, द सेम फंक्शन विल कम हियर। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दो, लेकिन ड्रॉप डाउन अगर ये चाहोगे तो इसको ड्रैग कर दोगे तो ये वाला ड्रॉप डाउन हर जगह आ जाएगा, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल। तो क्वेश्चनर क्या, एक सर्वे फॉर्म बनाना है मुझे एक्सेल शीट पे, सबका मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ। आई कैन सेंड दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट टू माय क्लाइंट एंड ही विल गिव मी द फीडबैक। उससे क्या होगा कि आपको यूनिफॉर्म सेटिस्फैक्शन लेवल का एक सीट बन के मिलेगा। थ्रू दैट यू कैन डू द डेटा एनालिसिस। ये बेसिक है जो चीजें डेटा वैलिडेशन के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक्सेल शीट होता है जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, उसके बेसिस पे आप लोग सेलेक्ट करते हो एंड यू यूजुअली फिल द फॉर्म। तो जो भी बेसिक डेटा कलेक्शन का काम होता है, पीपल यूजुअली यूज, आज जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, दे कैन आल्सो यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द क्लाइंट्स। और इससे फायदा क्या होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख सकते। आप कुछ भी लिखोगे इट विल गिव यू एरर, कुछ भी लिख दोगे वो एरर दे देगा। वो सिर्फ वही लेगा जो यहाँ पे इम्प्लीकेशन में है, मतलब इनमें इसी लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेटा वैलिडेशन एंड थ्रू डेटा वैलिडेशन वी हैव सीन सो मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स। अभी हम लोगों ने आपके लिए ये क्रिएट किया एक पूरी लिस्ट, आप चाहो तो इसको दोबारा इम्प्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। और ये हम लोगों ने लिस्ट बना के कैसे सर्वे करते हैं उसको हम लोगों ने देखा। सो टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड data validation, data visualization we are done, and almost you can consider yourself as an intermediate learner of Excel. Means we are about to complete intermediate level of data.
Excel techniques. So for today, I'm going to wind it up here. I'm not going to move further because your strength drop downs to 16, 17. I think maximum people leave by this time. They have to reserve their data. So thank you so much for today. And just give me a second so that I can send you quiz link. It is there with me. And this is the repercussion of things which we usually share. Stop sharing. Quiz 5, day 5. So we are going to wind it up here. Means so many things are there to cover, but I think let me